Last lecture, we have discussed the theorem, second derivative test. So we use this. I am just recalling quickly. Second derivative test. We use this second derivative test for finding local maximum minimum. So what was the test? Condition was that your fxy should be well defined and its first and second order partial derivatives fx, fy, fxx, fxy and fyx, they should be continuous throughout a disk centered at a comma b. मीन जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उसके नेबरहुड में it should be continuous all these things. So then it will have f has local maxima, f has a local maxima if fxx, first thing you will find fxx fyy minus fxy square. It should be positive always at a comma b. इसको fxx को I can write this also है ना, f11 f22 minus f12 square. It's the same thing. वन का मतलब फर्स्ट वेरिएबल है. अगर आपके फंक्शन इज अ फंक्शन विद टू वेरिएबल, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो x को मैं फर्स्ट वेरिएबल मान लेता हूँ, y को 2. तो f11 का मतलब होता है fxx, 22 means yy. So you can write in this way also same thing. This is greater than 0 at a comma b, and for local maxima what will happen? f11 should be less than 0, है ना, at a comma b. So first thing you will check this. If it is greater than 0, then if f11 less than 0, it is local maxima and it has local minima if f11 greater than 0. Okay. So this condition is also there. First thing is this. Then you will check the sign. What is the sign of f1? And if it is less than 0, then f has a saddle point. F has a saddle point if this f11 f22 minus f12 square is negative, less than 0. And no conclusion. So this is your first, second, third, fourth is test is inconclusive. The test is inconclusive. Inconclusive. यानी कि you can say test fails here. कोई conclusion नहीं दे रहा तो test fail है. So test is inconclusive if this thing is 0. f11 f22 minus f12 square is equal to 0. फिर हमें we will have to apply some different test using graph or something else. We have to check whether function has in minima, maxima, saddle point. ठीक. So these four conditions are possible. इसको f11 22 को you can remember in this way also. इसे ऐसे याद कर सकते हो कि it is what? It is basically 2 by 2 determinant. f11 first row first column f11, first row second column f12, second row first column 21, second row second 22. ऐसे याद कर सकते हो. f11 f12 f21 f22. जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, डिटरमिनेंट का f11 f22 minus f12 f21 are I am considering same because I am considering they are continuous. So this is square, है ना. तो ये जो फॉर्मूला है आपका, इसे ऐसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में you can memorize by using this thing. And keep in mind, first thing is f11 f22 by f12 square. इसे अगर आप रिवर्स करके लिखेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, है ना. You may in some book it may be given f12 स्क्वायर पहले दे रखा हो और f11 f22. अगर ऐसे लेंगे तो यहाँ पर हमें फिर लेस देन 0 चेक करूंगा ये चीज. अगर लेस देन 0 है देन दिस हैपनिंग, है ना. और सैडल पॉइंट में क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0.
So it was the second derivative test. Let us take one problem. यहाँ तक क्लियर है सब? Now this thing is clear. This test, it is very important test. इसका proof you can find in page 820 of your book. ये थ्योरम एक्चुअली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की कि हाउ दिस इज कमिंग, ऐसा क्यों हो रहा है कि योर दिस ग्रेटर देन जीरो विल गिव यू ऑलवेज मैक्सिमा या लेस देन जीरो विल गिव यू मिनिमम. So it's proof is there on page 820 of this book. Proof is given. You can understand the proof. They have proved it using Taylor's theorem. Find the local extreme values. Find the local extreme values of the function fxy is equal to xy minus x square minus y square minus 2x minus 2y plus 4. इसके हमें लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑन पेज 805. So here, what is the first step? Tell. What is the first step? If you want to find extreme values of any function. So finding derivatives, second derivative. Second derivative direct. No, sir. First Like the partial derivative. उससे क्या निकलेगा? से पहले fx निकलेगा, fy निकलेगा. फिर fx fy क्यों निकालना है? fxx नहीं, fx fy क्यों निकालना है? अगर fx fy निकलेगा ठीक है, उससे क्या मिलेगा हमें? What we will get from fx fy? तो fxx fyy मिलेगा. फिर first thing is what? If you want to find the extreme values of a function, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको कि कहाँ एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी? क्रिटिकल पॉइंट्स. But if you want to find the extreme values, so you have to find कि where the extreme values can exist. उसके लिए you have to find the critical points, है ना? अब इसके पास आप हर एक पॉइंट पे कुछ चेक करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स है. इट इज डिफाइंड इज द होल एक्स वाई प्लेन. निकालते रहिए आप. तो फर्स्ट थिंग आई नीड क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि आई नो कि ओनली एट द क्रिटिकल पॉइंट्स दिस फंक्शन विल बी हैविंग मैक्सिमा मिनिमा. तो फर्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स. तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आई विल फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स fx fy. आई विल पुट इक्वल टू 0. ये थ्योरम थी, आपको हमने कराई है. ओके, so I will find fx. Fx is a simple function. You can find fy minus 2x minus 2. And I will put equal to 0 for finding critical points. Keep in mind. Similarly, fy is how much? X minus 2y minus 2 is equal to 0. इसको simultaneously solve करेंगे. ठीक, so you got two equations, x minus 2y is equal to 2, y minus 2x is equal to 2. Solve करके इसको you will be getting how much? सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, x कैंसिल कर दिए, y आ जाएगा, फिर y कैंसिल. तो by using substitution method or elimination method, you will be getting x is equal to y is equal to minus 2. Okay, so this is Yes. or only one, क्योंकि this is it's a simple system of equation. इसमें एक ही आपको वैल्यू मिल रही है. So you got only one critical point. So this implies that minus 2 comma minus 2 is the only critical point. एक ही critical point मिला हमें यहाँ पे. और is the only critical point where this function fxy क्या होगा? May have extreme values, है ना? May have क्यों लिखा है मैंने? Why I am writing may have? क्योंकि मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी. नहीं, वो तो may क्यों लिखा है? कैन लिखना चाहिए था.
आई लिखा मे हैव एक्सट्रीम वैल्यूज, क्यों लिखा है मे का मतलब डाउट है मुझे। सैडल पॉइंट भी तो हो सकता है ये, है ना, यस सर। इसलिए आई एम राइटिंग मे हैव एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि एक्सट्रीम में तो मैक्सिमम मिनिमा है ही, लेकिन ये पॉइंट सैडल पॉइंट भी तो हो सकता है, सैडल पॉइंट पे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इसलिए आई एम राइटिंग मे हैव। इस मे को कंफर्म करने के लिए आई विल हैव टू चेक व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पॉइंट, उस पॉइंट के लिए आई विल अप्लाई विच टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव ये टेस्ट। टेस्ट लगाएंगे अब हम यहाँ पर, ठीक है। चलो तो अब कितना आसान हो गया देखिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, वरना आप अगर यू डोंट हैव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करना पड़ता है, तो हम पॉइंट रख के चेक करते, इस पॉइंट के इसको आप डिस्क बनाएंगे पहले -2 के सेंटर करके, फिर यू विल हैव टू चेक कि इसके नेबरहुड पे कहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, so it's quite complicated, but by second derivative test it is quite easy. So now I will apply second derivative test for finding what will happening at this point. तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा भाई हमें, f x x, है ना, क्योंकि इट्स सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। व्हाट इज f x x, इससे -2, है ना। व्हाट इज f x y, हाउ मच f x y, So -2. f x y भी -2 है, इसे विद रिस्पेक्ट टू y So 1 किया होगा। है 1, है ना। fx में 1। एफ एक्स वाई निकाल ले चाहिए, देखो एफ बाई एक्स भी 1 आएगा, एफ बाई एक्स इज हाउ मच, इसको भी रिस्पेक्ट टू एक्स करो 1 ही आएगा वो, क्योंकि आपका ये सिंपल कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, तो इसमें एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, है ना। मिक्स डेरिवेटिव आर नॉट ऑलवेज इक्वल बट इक्वल इफ दीज आर कंटिन्यूअस, तो वो सेम ही आ रहा है। व्हाट अबाउट एफ वाई वाई, -2। -2, ठीक है। तो यहाँ पर दे आर ऑलरेडी कमिंग सम स्केलर्स, तो एट द पॉइंट पे इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, हम एट द पॉइंट चेक करते हैं। तो अगर एफ एक्स एक्स -2 है, तो एफ एक्स एक्स एट द पॉइंट -2 कितना रहेगा, यही रहेगा सेम, है ना, क्योंकि इस पे एक्स वाई का टर्म ही नहीं आया। सो नाउ आई विल चेक फर्स्टली एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो एफ एट द पॉइंट, ये सब एट द पॉइंट होंगे, ध्यान रखना है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी रियल नंबर्स, तो पॉइंट रखने से भी सेम वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया। तो हाउ मच इट इज, तो एफ एक्स एक्स -2 3। एंड माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर, तो 4 - 1 3, क्या है ये, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में क्या बताया था, फर्स्ट थिंग इफ इट इज ग्रेटर देन 0, नाउ आई विल, बिकॉज ग्रेटर देन 0, तो आई विल चेक द साइन ऑफ एफ एक्स एक्स, so this greater than 0 and f(x(x) is -2 which is less than 0, इसका साइन क्या है, less than 0, so it means what, मैक्सिमा। Local this, maximum. yes, this implies that fxy has a local maxima at the point -2, -2, उसकी आप चाहे तो वैल्यू निकाल लें, f of what is the value of that, what is the minimum maximum value, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, so it is coming 8, so it means कि this function will have maximum value 8, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं होगी, हाईएस्ट वैल्यू इसकी 8 रहेगी, ठीक है। so it was a simple problem, जिसमें आपने देखा कि ये पॉइंट को हमने कैसे चेक किया। अगर यहाँ पर लेस देन 0 आ जाता तो हम डायरेक्ट यही लिख देते दिस पॉइंट इज अ सैडल पॉइंट, फिर हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी व्हाट इज द साइन ऑफ एफ एक्स, ठीक है भाई। एग्जाम्पल 4 है, इसी पे आप ट्राई कीजिएगा, ऐसे 805 पे होम असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये, इसी टाइप की प्रॉब्लम है। So after this we have next thing, I think exercise होगी आपकी। अच्छा हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अभी तक हम बात कर रहे थे लोकल की, नाउ आई विल टेक एब्सोल्यूट।
इसे प्रॉब्लम को करेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट मैक्स, इसी में ही है 14.7 में ही आपको चल रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। एंड मिनिमा ऑन क्लोज्ड बाउंडेड रीजन, ऑन क्लोज्ड बाउंडेड रीजन। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? ग्लोबल, यू कैन से, है ना, मीन्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू। एब्सोल्यूट मीन्स ग्लोबली, ग्लोबल यू कैन से। तो ग्लोबल जब आप एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं तो यू शुड हैव क्लोज्ड रीजन। अगर आपके पास क्लोज्ड बाउंडेड रीजन नहीं है तो क्या होगा? यू कैन नॉट फाइंड अ मैक्सिमम वैल्यू, है कि नहीं है? इफ यू वांट टू फाइंड अ मैक्सिमम वैल्यू यू हैव टू पुट द बाउंड्री। बताइए, Yes, sir. है ना? जैसे आपके पास वो ले ले आप, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कह रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स यू नो इट इज 2x। आप इसे पुट करते हैं जीरो, तो x इक्वल टू जीरो इज द क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट, एंड d2y बाई डी एक्स टू इज हाउ मच? इट इज 2 greater than 0, so x equal to 0 is the point of minima. So you know, if you will see graphically, it will give you the upward parabola, है ना? तो 2 पे इसकी 0 पे मिनिमम वैल्यू है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? आप x पे 0 रखें तो हाउ मच? 0। सो 0 इज द मिनिमम वैल्यू, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। लेकिन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस? बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू? एनी आइडिया? No, sir. Infinity होनी चाहिए वैसे तो। So 0. अरे 0 तो ये आ गई मिनिमम वैल्यू ना, 0 तो निकाल लिया आपने। d2y बाई डी एक्स टू वाज पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव था, तो ये आपका मिनिमम हो गया। 0 पे 0 एक ही क्रिटिकल पॉइंट था, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिटिकल पॉइंट आपका आ रहा था, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था, इससे हमने चेक कर लिया। लेकिन अगर मैक्सिमा की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमा आई कैन नॉट फाइंड बाय दिस थिंग। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट क्लोज एंड बाउंडेड। ग्राफ कहाँ जा रहा है? वाई की वैल्यू क्या? यही तो है वाई, दिस इज योर वाई एक्सेस। ये तो बढ़ता ही चेंज, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट बाउंडेड, है ना? बाउंडेड कोई ही है। तो जब आई विल फाइंड No, sir. एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, आई विल हैव टू गिव यू द बाउंड आल्सो, कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, एंड यू विल गिव के व्हेन x इज इक्वल टू सपोज, x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू सपोज 3। तो आप एक बाउंड लगाएंगे कि दिस इज अ लाइन y इज इक्वल टू 3, कुछ रीजन देना होगा। अब ये बाउंडेड रीजन है, इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी क्या होगी, है ना, इस तरीके से। तो व्हेन आई विल फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा आई विल नीड अ बाउंड, तो इसलिए लिखा है ऑन क्लोज बाउंडेड रीजन। अगर आप क्लोज बाउंडेड नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन? यू विल नॉट एबल टू गेट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। लोकल निकाल सकते हैं, क्योंकि लोकल में तो ये लोकल आ गया, है ना? जैसे मैं आपको कर्व का ग्राफ बताया था मैंने, इस तरीके से ये है। अब मैं अगर इसको रोकूंगा नहीं तो आप यू कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट। लोकल आपको मिल जाएगा, ये है लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। यहाँ पर ये लोकल मैक्सिमा है। अब मैं अगर आपको ग्राफ को रोकूंगा नहीं तो हो सकता है आगे और मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो। लेकिन अगर मैंने इस पे बाउंड लगा दिया कि आई विल टेक दिस इज द बाउंड, तो बाय द फिगर आई कैन सी दैट दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्योंकि इन सारे मैक्सिमा में इट इज द हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा इन दिस रीजन, है ना? इज इट क्लियर? So when I will talk about absolute, I will have to take close bounded regions. समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? Yes, sir. ठीक है, चलो। So in this way I can find this. So how to find absolute? कैसे हम absolute find करें? ये कहाँ गए लखन वाफड़े, कहाँ गए लखन? हाँ भी लाखन,
गायब हो गए लखन वापसी। सौरभ त्रिपाठी। सौरभ। भुवनेश कुमार। कहाँ है सारे ये लोग? यस सर। जी। कौन बोला? सर भुवनेश। हाँ बताओ भुवनेश, कहाँ चले गए थे? हैं? सर यहीं पे था मैं तो। आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैंने जब आपको आवाज दी तो यहीं पे, मतलब ये कि क्लास के अंदर ऐसे होना चाहिए जैसे आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही है। सर बताइए। सर रिप्लाई किया था, लेकिन सर अनम्यूट था। बताइए क्या बताया मैंने। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्या हमें रिक्वायर्ड है? हम्म? If you want to find absolute maximum minima, what must be there? बताइए, अगर आप क्लास में थे तो आपने। सर हाँ। ओपन एंड बाउंडेड रीजन सर, सॉरी सर, है? क्लोज एंड बाउंडेड रीजन होना चाहिए। ठीक है, क्लोज एंड बाउंडेड रीजन होना चाहिए। तो क्लोज एंड बाउंडेड रीजन के अगर आपके पास है, सपोज दिस इज द क्लोज बाउंडेड, ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये कुछ एफ एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इट इज सम एफ एक्स वाई। अब आई वांट टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ दिस। तो हाउ वी कैन फाइंड एब्सोल्यूट ग्राफिकली, विच पॉइंट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा? सर ग्राफिकली सर जो सबसे हाईएस्ट 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 पीक पर होगा सर, वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। हाँ, तो इसमें कौन सी हाईएस्ट पीक है? सर ये जो आपका ये कर्सर आला जो है यहाँ ये पर। है? यस। ठीक है। यस सर। तो इफ यू वांट टू फाइंड हाईएस्ट पीक, तो ये जो हाईएस्ट पीक है ये भी बेसिकली क्या है तो ये भी लोग अपना लोकली तो ये भी मैक्सिमम है, लेकिन इन सब में यस हाईएस्ट। सर। तो अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड, ग्राफ तो एवरी टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, बताइए, कोई भी बताए। सर सर क्रिटिकल पॉइंट्स पे सर, जितने तो क्रिटिकल मैं पॉइंट होंगे हाँ। उन पे सर सबसे पहले मैक्सिमम फाइंड करेंगे। उन सब में जितने भी मैक्सिमम में हाईएस्ट वैल्यू जिसकी होगी हाँ। सर वही होगा। अच्छा, क्यों भाई? फंक्शन वैल्यू सर जितनी भी हाईएस्ट होगी सर उस पॉइंट पे हाँ। वही मैक्सिमम होगा सर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम सर। बताओ भाई, सही बताया इन्होंने? कोई और बताया इनकी बात सही है? इसी करेक्ट? सर हम सारे क्रिटिकल यस सर, पॉइंट्स पहले निकालेंगे और क्रिटिकल सर उन पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल फिर पॉइंट्स उसमें को बाउंड्री ऑपरेट पॉइंट्स। करेंगे जो इसमें आ हाँ। रहे हैं हमारे बाउंडेड रीजन में। अच्छा, ठीक है। क्यों भाई औरंगजेब, क्या बोल रहे थे आप? पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, फिर बाउंड्री पॉइंट्स हाँ। उस पे से आएंगे। हाँ देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकालेंगे हम उसके, और बाउंड्री पॉइंट्स भी निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स में तो आपके पास क्या होगा कि ये सारे पॉइंट आ गए जहाँ लोकल मैक्सिमम मिनिमा है। तो इसका यही, इट इज द प्रोसीजर। आप सही हैं, भुवनेश ने सही बताया, बाकी लोग भी ठीक बोल रहे हैं कि पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास निकल के आ गए, तो क्या करेंगे, उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप चेक कर लेंगे विच पॉइंट इज मैक्सिमा, विच पॉइंट इज मिनिमा बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सपोज मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो यू विल सी कि विच पॉइंट इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और उस पे हम उन सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे, है ना। ये वैल्यूज है, जैसे आपने निकाल दी, सपोज के कोई पॉइंट आपके पास निकल के आया, उस सब पे आपने वैल्यू निकाल दी कि एफ ऑफ ए बी इज 4, एफ ऑफ सी डी इज 7, इस तरीके से लिस्ट ऑल द वैल्यूज उसमें से जो। लेकिन सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पे नहीं, इसके साथ साथ हम बाउंड्री पॉइंट्स को भी देखेंगे। बाउंड्री पॉइंट्स जो है आपके क्रिटिकल पॉइंट्स में नहीं आते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स को हमें अलग से कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा में एग्जिस्ट एट अ बाउंड्री पॉइंट्स आल्सो। तो वी विल फाइंड बाउंड्री पॉइंट्स आल्सो। बाउंड्री पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, जहां पर आपके पास बाउंड्री दे रखी होगी, तो वो जो बाउंड्री इंटरसेक्शन आ रहा होगा वो बाउंड्री हो जाएगी। तो बाउंड्री पॉइंट्स पर भी हम वैल्यूज निकालेंगे, एंड देन वी विल सी विच इज द हाईएस्ट वैल्यू, विच इज द लोवेस्ट वैल्यू, दैट विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, यही इसका प्रोसीजर है। क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल सी ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स, है ना, ये इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, ये सब इंटीरियर पॉइंट्स हैं। जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ रहे हैं ये सारे इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो द प्रोसीजर इज सिंपल, प्रोसीजर मैं लिख दे रहा हूँ इसका।
procedure. First thing is what? You just find all the interior points. उन्हीं को हम critical points कहेंगे. Find all the critical points. तो ये basically interior points है. Interior points. Where function, where fxy may have local extreme values. Extreme values. मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कोई इसमें पॉइंट सैडल भी आ सकता है. May have local extreme values. वो तो हम सेकंड डेरिवेटिव से टेस्ट कर लेंगे, है ना. एंड देन सेकंड क्या है? लिस्ट ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स. ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. लिस्ट ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स where f has मैक्सिमा मिनिमा या लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज. एक्सट्रीम में मैक्सिमम मिनिमा दोनों वर्ड्स आ जा रहे हैं. f has local extreme value. Then third will be what? Just check which point is, है ना. Now look, or you can see now, see which point is, now see which point gives the highest value of f, है ना. That will be what? Which will be absolute value. यही आपकी absolute value हो जाएगी. This will be absolute maxima अगर highest है ना. And see which point gives the lowest value. अब ये एक ही पॉइंट पे जरूरी नहीं मिले. हो सकता है दो पॉइंट पे भी आपको सेम हाईएस्ट वैल्यू मिल जाए, है ना. इज इट पॉसिबल कि कोई कर्व ऐसा हो कि आपका आगे जाके ये फिर इतनी हाइट पे पहुंच जाए. तो पॉइंट तो डिफरेंट होंगे लेकिन वैल्यू हाईएस्ट जो होगी वो हमेशा यूनिक होगी. इसलिए मैंने द हाईएस्ट लिखा है ना. बट इट इज पॉसिबल कि f22 भी आपके पास 8 आ रहा हो और f-2 भी 8 आ रहा हो. तो हाईएस्ट वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो 8 ही होगी आपकी, है ना. बट इट विल बी हैपनिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, 2, 2, -2, -2. So you may have two different points, but highest value will be unique. So see which point gives the lowest value of f, which is called absolute minima. ठीक है. तो ये सिंपल सा वर्कआउट हमें करना है. इज इट क्लियर? एल्गोरिथम इज क्लियर फॉर दिस? यस सर. चलो तो एक प्रॉब्लम लेते हैं. प्रॉब्लम में इट विल बी क्लियर, इट विल मोर क्लियर देयर. एग्जाम्पल 5 है आपका पेज 806 पर. इफ यू हैव 5 मिनट्स फिनिश करने की कोशिश करेंगे इसे. फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम. फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम. शॉर्ट में मैक्स मैं लिख दे रहा हूं मैं, मैक्स मिनिमम वैल्यूज ऑफ. यहाँ पे हमें वैल्यूज निकाल, अगर वैल्यूज निकालनी है तो आपका इसका मतलब पॉइंट को रख के भी वैल्यू निकालनी होगी. जैसे हमने पीछे निकाली थी f22 = 8. तो that 8 is the value, है ना. फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन fxy = 2 + 2x + 2y - x² - y². इस फॉर्म में फंक्शन लिखा हुआ है. अब अगर एब्सोल्यूट निकालनी है दे विल गिव यू द बाउंड्री आल्सो. तो बाउंड्री इज गिवन ऑन द triangular region, in the first quadrant bounded by the lines x = 0, y = 0 and y = 9 - x. Okay, so they have given you the boundaries.
boundaries are given to you. You have to find the absolute maximum minima. So first thing, if you see what is this region, it is a first quadrant. First quadrant है. This is your first quadrant, you know, and bounded by the lines. X is equal to 0 means which axis? Y-axis, sir. Yes, and y is equal to 0, x-axis. And what is this line? What is this line? X plus y is equal to 9. So x upon 9, ऐसे लिख सकते हैं इसको. What is this? ये ऐसे आ जाएगा. This is your intercept form, है ना? You must have studied in your 12th class of coordinate geometry. So this is your intercept form. 9, 0, 0, 9. So now you can see it is a triangular region. So you have this region. ये bounded region आ गया. So inside this region, what is the absolute maximum minimum of this function? ये हमें निकालना है. Problem is clear. ठीक. So firstly, what I will do, as I told you, first step is what? I will find all the critical points, interior points. पहले इस function के सारे interior points निकालते हैं, देखते हैं where they are coming, है ना, and where they are lying. So first thing is interior point. So how to find interior points? A is interior point. हमें सारे points पहले list करने. What are the possibilities where this function may have maximum minima? So interior points के लिए I will find critical points, है ना? Interior का मतलब क्या था? Critical point. So you will take fx is equal to 0. Fx is how much? 2 minus 2x is equal to 0, and fy is 2 minus 2y is equal to 0. So यहाँ पे simple equation है ये. You got x is equal to 1 and y is equal to 1. So only one point is given. So that means, so this implies that xy is equal to 1, 1 is the only critical point. Only critical point. अब हमें ये भी देखना है कि पॉइंट इसमें अंदर लाई कर रहा है या रीजन से बाहर है. 1, 1 कहाँ होगा? रीजन में ही होगा सर. रीजन में आएगा ना. ये आ गया सपोज 1, 1. इट इज योर पॉइंट 1, 1. तो रीजन में ही होगा. तो ये 1, 1 पे हम अब क्या करेंगे? आई विल चेक कि व्हाट इज द वैल्यू, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम मिनिमा. तो यहाँ पर बस डायरेक्ट वैल्यू निकाल के हम चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f11. तो f11 इज हाउ मच? 4. ठीक है, वैल्यूज निकाल लो आप यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम. अब हमें यहाँ पे चेक नहीं करना है कि पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो भी आप चेक कर सकते थे fxx fy निकाल के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट दैट नीड नॉट टू चेक हियर बिकॉज आई वांट एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा. तो हमें दिख जाएगा जो हाईएस्ट वैल्यू है वही मैक्सिमा होगा बस. तो f11 की वैल्यू 4 आ गई. नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इंटीरियर आ गया. अब आई विल चेक बाउंड्री पॉइंट्स, है ना. सेकंड स्टेप क्या था? लिस्ट ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स. अब इसकी अगर आप बाउंड्री देखें, व्हाट इज द बाउंड्री?